Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of the subject physics. Today we are going to deliver the lecture number 2 of the chapter nature of light and the electromagnetic spectrum. In the last lecture we have covered the different and various theories which reveal the dual nature of a light. So today we are going to start with the process which we call the dispersion of light. So how we define the dispersion of a light? In a very simplest way, when a white light from the sun up, sun is a bigger source of a light, so we can call the sunlight. When the white light travels from one medium to another medium, particularly from the rare medium to the denser medium, it will split into its components. This process is known as dispersion of light. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या मतलब हुआ कि white light यानी सफ़ेद रोशनी जो सूरज से हमें मिलती है, if it is passing through the some thicker medium like any of the denser medium, in this case we have taken the glass prism. So when it passes from the prism, it will split into its component. Why this is happening? So मेरा क्वेश्चन ये सिंपल है, इसको सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज सो. So as we know, when light enters, if you remember our animation of a prism, we may recall the things कि when light enter from the rare medium to the denser medium, it will always deviate towards the normal, and the speed of light will be depending on the frequency of a wavelength, frequency of a wave की frequency के ऊपर depend करता है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि when light enter into the region which is thicker than the air, in this example this is a glass or the prism, तो जब यहाँ पे enter होगा तो since different waves have a different frequency and wavelength, so that alter their part, तो उनका reflection या उनकी चीज़ों का different पड़ेगा, जिसकी वजह से the white light will simply split into the components. white light को जो है वो अपने component में टूट जाएगी when the beam of light passes from this point to this point. And this color scheme we called it, इस color scheme को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा zoom कर लेते हैं इसको. ये जो color scheme है we called it Viboyer, VIB, वायलेट, इंडिगो, ब्लू. ये देखिए ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. beside the red, beyond the red there will be the infrared rays, and beneath the violet there will be the ultraviolet rays. ठीक है, तो both have a different frequencies, but these are the 7 colors which are visible by the naked eye or the human eye. So we can say the process of splitting a white light into its component is called the dispersion, and that disperse rays, ये जो वेबगायर फॉर्म हुआ है, we call it a spectrum. इसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे. ठीक है, याद रहेगी ये बात, ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाएगा. तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट is the outcome of a dispersion of a light. यहाँ तक बात समझ में आती है. The shortest wavelength is of the violet and its deviation is great. इसका मतलब एक और बात समझ में आती है कि if the wavelength is smaller, the deviation will be greater. wavelength जितनी smaller होगी उतना ही deviation जो है वो ज़्यादा होगा. That is why we are getting the violet at the most deviated point. ज़्यादा झुकाव इसमें violet में हो रहा है और सबसे कम झुकाव किसमें हो रहा है, red में हो रहा है. तो probably you guess कि क्या कहते हैं, जो वेवलेंथ है हमारे पास रेड का, दैट इज नो मोर अ शॉर्टेज, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट विजिबल वेवलेंथ, जिसको हम रेड कहते हैं. और रेड से ऊपर जितनी वेवलेंथ होती है वो नॉर्मल ह्यूमन आई से कैन नॉट बी विजुअलाइज. सो वी कॉल इट क्या कहेंगे इसको हम जी, इंफ्रारेड कहेंगे. और जो वायलेट से बीनीथ होंगी वो भी बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगी. सो वी कॉल देम अ अल्ट्रा वायलेट रेज. तो यहाँ तक एक बात जब हमें समझ में आती है, वंस वी डन विद द थिंग्स, इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या है, ये वही डिस्कशन है आपके पास. इसको गो थ्रू करने से पहले इसको समझ लें, फिर वी विल गो विद द एनिमेशन ऑफ दिस वन. कि यहाँ से देखिए वाइट लाइट आई, आपके सामने नज़र आ रही है, वाइट लाइट आ रही है. ये वाइट लाइट आई प्रिज्म से और डेविएट हुई विद द कलर्स ऑफ अ रेड. ये जो ऊपर की तरफ हमें नज़र आ रहा है वी कॉल इट अ रेड, यानी जो आखिरी बीम है ये रेड की है, और ये जो लास्ट वाली बीम है दिस वन वी कॉल इट अ वायलेट. इसके दरमियान वो पूरा वेबगायर बन रहा होगा, तो कंपोनेंट्स में टूट गया. अच्छा, व्हेन दीज कंपोनेंट्स री एंटर फ्रॉम द एयर टू द डेंसर मीडियम, दे विल रीयूनाइट टू फॉर्म द वाइट लाइट. ठीक है, क्या करता है वो, दोबारा से वाइट लाइट बना देता है. दो प्रिज्म मिलके आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट को जो है नज़र आता है अलग कलर से, वो दोबारा से रीयूनाइट कर देता है इसको. यहाँ तक बात समझ में आती है. इतनी सी चीज़ों को देखने के बाद द
the popular example of formation of a dispersion and formation of a spectrum is a rainbow. तो रेनबो क्या है, वो जो ड्रॉपलेट है, जो पानी का कतरा है, वो एज अ प्रिज्म एक्ट करता है. व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम दैट, इसके अंदर जब एंटर होती है, इट विल स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट एंड फॉर्म द कौसे कज़ा. वो जो रेनबो बनती है, कौसे कज़ा बनती है, वो इस तरीके से नज़र आ रही होती है. ये वाइट लाइट आई एंड इट विल deviate from the original path with respect to their wavelength from red to violet, and they will showing the 7 colors. वो जो कौसे कज़ा नज़र आती है हमें, वो इस तरीके से नज़र आ रही होती है. ठीक हो गई बात ये. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. चलिए जी, अब ये डिस्पर्जन की जो है एक आपके सामने एनिमेशन है, ये सामने देखें तो हो क्या रहा है कि वाइट लाइट, देखिए यहाँ कलर का ख्याल रखा गया कि ये वाइट लाइट आ रही है. व्हेन इट एंटर्स इनटू द प्रिज्म, इट विल डिस्पर्सिंग ऑफ, इट विल स्प्लिटिंग इनटू द कंपोनेंट्स. रेड ऊपर है, वायलेट सबसे नीचे है. ये वेवगायर बन रहा है हमारे पास. एक और एंगल से इसको देखें तो ये एक वाइट लाइट आपके पास आई एंड स्प्लिटेड इनटू द कंपोनेंट्स. ठीक है, तो ये अब उम्मीद है कि डिस्पर्जन का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और वो जो रीयूनाइट वाला है वो भी जरा सा देख लें. ये आपके सामने है, रीयूनाइट वाला वीडियो नज़र आ रही है कि इसमें हो क्या रहा है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं दे विल स्प्लिट, और यहाँ से आके ये कंपोनेंट्स में टूट रहे हैं. अच्छा, हमने जो डायग्राम पढ़ी थी वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट पढ़ी थी, यानी वाइट लाइट एंटर हुई कंपोनेंट्स, फिर कंपोनेंट्स एंटर हुए वाइट लाइट. तो एक ही बात है यहाँ पे हमारे पास. व्हेन वी वांटेड टू रीयूनाइट देम इन एनी ऑफ द केस, इफ वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज, वेवगायर हमें मौजूद है, तो व्हेन इट एंटर इनटू द मीडियम, इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द सिंगल वेव और सिंगल बीम ऑफ लाइट विच वी कॉल द वाइट लाइट. एंड देन वाइट लाइट व्हेन अगेन एंटर इनटू द denser medium, तो it will be splitting into the components which we call the waveguide, violet, indigo, blue, green, orange and so forth so forth. ठीक हो गई बात ये. ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक और भी हमने एक एनिमेशन रेडी की ताकि कॉन्सेप्ट हुई. ये वाइट लाइट एंटर हुई प्रिज्म नंबर 1 में फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और यहाँ पे ये अपने कंपोनेंट्स या कलर में टूट गए. और आपको पता है बीच के कलर्स तो हमने दिखाए नहीं. सबसे टॉप मोस्ट वाला हमारे पास रेड और नीचे वाला वायलेट है, और ये इसी तरह से टूटे हुए कंपोनेंट्स के साथ डेविएट होके बाहर निकली इस प्रिज्म से, यानी अगेन इट बिकम विजिबल इन द कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में. तो अगर यहाँ स्क्रीन पे हम लेंगे तो वी विल गेट द 7 विजिबल कलर्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम के साइड में. बट अगेन इफ यू आर पुटिंग अनदर प्रिज्म इन अ अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये दीज आर रीयूनाइट टुगेदर एंड दे विल आल्सो फॉर्म अ सिंगल वाइट बीम लाइट. ठीक है, ये इस तरीके से आपकी एनिमेशन कंप्लीट होती है, और ये आपको दोनों का जो है डुअल नेचर नजर आ रहा है. इसी के आगे अगर हम देखें तो ये हमारा रेनबो ड्रॉप है. लेट कंसीडर दिस सर्किल एज अ रेनबो ड्रॉप. वंस द वाइट लाइट एंटर इनटू द डेड वन, तो इट विल स्प्लिट इनटू द कंपोनेंट्स. वही डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फेनोमेना हो रहा है. एंड वंस दिस डिस्पर्जन हैव बीन कंप्लीटेड, तो दीज लाइट्स शोन एज लाइक द रेनबो कलर्स. ये रेनबो के कलर्स के तौर पर हमें नजर आ रही होंगी. उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी. अभी अगला कॉन्सेप्ट है. So in this connection we are moving ahead with the emission of light by atoms. Atom also emit the light. कैसे होती है? When electrons in a orbit. ये डायग्राम को जरा से समझें. This is the center part of a nucleus. ये हमारे पास सेंटर पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे. दैट इज व्हाई दे गॉट द पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स. ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है. ठीक है, स्टेबल स्टेट है यहाँ पे हमारे पास. इफ देयर आउटर मोस्ट ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, दे आर नॉट वरी अबाउट चेंजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. सो दिस वी कॉल द स्टेबल स्टेट. वंस द अदर एनर्जी इज बीइंग इंजेक्टेड, यहाँ से कोई दूसरा एलिमेंट या कोई दूसरा एटम इसको इग्निशिएट करता है, तो इट get excited, and due to the excitement it will jump from one orbit to another orbit. It may be either towards the nucleus or away from the nucleus. When electron jumps from one orbit to another orbit, it will release or gain the energy, and that energy must be in the form of a light beams के शक्ल में होगी. और वो जो एनर्जी की लाइट्स हैं वो हमें रंगीन कलर में नजर आती हैं. दैट इज द मेन रीजन वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ कलर कंपाउंड. कलर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं? कलर कंपाउंड बनाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द एक्साइटेड स्टेट एंड दे आर जंपिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट वेरी कंटिन्यूअसली, एंड इन दैट way they are getting the
they are getting the form the color compound. For the sake of example, copper sulfate की अगर आप मिसाल लें तो ब्लू टाइप का होता है, ठीक है, और इसी तरीके से आयरन पे जो जंग लग जाता है ऑक्सीजन की वजह से तो वो ब्राउनिश टाइप का हमें नजर आ रहा है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास बात समझ में आती है। इसके बाद उम्मीद है कि आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। स्पेक्ट्रम का टॉपिक वी ऑलरेडी कवर्ड, बट इंशाल्लाह वी विल गेट अ डिटेल डिस्कशन अबाउट द स्पेक्ट्रम इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। थर्ड लेक्चर के अंदर हम करेंगे और वी विल ट्राई टू कंक्लूड द चैप्टर बाय कंक्लूडिंग द रिमार्क्स ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, एक नज़र एक झलक दिखाते चलते हैं ताकि अगले लेक्चर के लिए एक एक्साइटमेंट आपको लगी रहे। ये देखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक इम्पैक्ट ये नज़र आ रहा है और एक इम्पैक्ट ये नज़र आ रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कमिंग लेक्चर। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग एंड लिसनिंग अस। होपफुली दिस लेक्चर विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल टू यू। कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।